Good morning, students. This session is for class 8th science students. Today we are going to study chapter 5th, coal and petroleum. Students, last day means yesterday we have completed the exercise of chapter 4, that was metals and non-metal. So that chapter has completed. If you have any doubt, you can contact or you can write in comment. Okay, so let us start chapter 5th, coal and petroleum. Okay, so you can see here we have we use various materials for our basic need. Some of them are found in nature and some have been made by human effort. So student, we know that there are two types of materials. First one is natural, which is already exist in nature, which are not made by human beings. Some materials are made by human beings, for example your phone, television, etc. are man-made, and mountain, rivers, trees, these are natural. Okay, so you can see there is activity 5.1, and make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. So give the name of materials which are natural and used by us in daily life. Similarly, you should write some man-made materials. Okay, so I hope you can complete this list easily. You can see here, does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. So since you are using air for breathing, means oxygen, then soil for agriculture, water and different types of minerals, so these are the natural materials. Now you can write man-made here. You can write television, mobile phone. Okay, so these are the materials which are man-made. So there is a question, can we use all our natural resources forever? क्या हम लोग अपना नेचुरल रिसोर्सेज को फॉरएवर यूज़ कर सकते हैं? दिस इज़ क्वेश्चन. इट मीन्स फॉरएवर यूज़ कब करेंगे? जब ये नेचुरल रिसोर्सेज इनफाइनाइट अमाउंट में अवेलेबल होंगे. ठीक है, इफ़ these natural resources are limited, then we cannot use these resources forever, but if they are unlimited, we can use these resources forever. So I hope you know all the natural resources are not unlimited. Some of the natural resources are unlimited and some of the natural resources are limited. So let's see. You can see here, can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studies about water in class 7th. Is water a limited resource? So student, there is huge amount of water available on the earth, but very little amount of water is potable water. Okay, so all the water which we can see in the oceans or in other water bodies are not potable water, but the amount of potable water is very less as compared to the whole water available on the earth. So you can see here, in the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kind. तो यहाँ पे हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड है और कौन कौन से ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं. तो
उनके बेसिस पे उनको क्लासीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से ऐसे हैं जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगे, ये अनलिमिटेड है। तो कौन कौन से हैं ये? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वैसे कौन कौन से हैं? यू कैन सी सनलाइट एंड एयर। सो सनलाइट और एयर इतने लार्ज अमाउंट में कि इसका कितना भी यूज़ करें ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो इनकी डिफिनीसन क्या है? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। तो ये हो गया आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो ऐसे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जो लिमिटेड अमाउंट में और जिनका यूज़ अगर हम लोग लगातार करते रहेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। तो ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये लिमिटेड अमाउंट में है एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जांपल्स अब आप अपने से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए फॉरेस्ट अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है, जिस रेट से फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं बहुत सारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक फॉरेस्ट बहुत कम अमाउंट में रह जाएंगे, जिससे अर्थ पे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। देन वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल वैसे भी देख रहे हैं कोल का लगातार इतना कोल बहुत कम बचा हुआ है, लगातार यूज़ कर करके हमने इसको ख़त्म कर दिया है। सिमिलरली पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो ये सब जो दिख रहा है आपको, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी जो हैं ये लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में ये अवेलेबल हैं। तो इनको लगातार यूज करते रहने से ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब ये फॉरेस्ट, ये वाइल्ड लाइफ, ये मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को उनके अवेलेबिलिटी, नेचर में उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज़ इनएग्जॉस्टिबल, सेकेंड वन इज़ एग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ रहा है, इनएग्जॉस्टिबल क्या है और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एक्टिविटी 5.2 है। एक्टिविटी 5.2 को आप कर सकते हैं परफॉर्म। इसका मीनिंग आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। पहले तो ये ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक सम कंटेनर्स, आपको कुछ कंटेनर लेने हैं एंड फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफ़ीज़ एक्सेट्रा। इनसे उन कंटेनर्स को फिल कर देना है, ठीक है। नाउ डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। तो 7 के ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप। अब सभी जो आपके पास ग्रुप है 7 के, जैसे ये 7 का ग्रुप है, इसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 सब ग्रुप में कैसे करना है? 1, 1, 2 और 4 में, ठीक है। तो आपने पहले 7 बच्चों को ले लिया, ऐसे 7 बच्चों को ले लिया। इसके बाद उन बच्चों में से 3 सब ग्रुप बनाना है, 3 सब ग्रुप बनाना है, जिनमें से एक में तो एक ही बच्चा रहेगा, उसके बाद एक ग्रुप में 2 बच्चे और एक ग्रुप में 4 बच्चे होंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स। नाउ लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। तो अब इनको जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन नेम दे देना है। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन हो गया, ठीक है, ऐसे करके। नाउ दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ये जो सब ग्रुप है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे?
कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कंज्यूमर्स मीन्स जो उपभोक्ता है, जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, ठीक है। नाउ एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब बिगनिंग में पॉपुलेशन कम रही होगी तो सिर्फ एक ही है, फिर पॉपुलेशन बढ़ी तो 2 हो गए, और फिर बढ़ी तो 4 हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन्स हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इनके पास लार्जर नंबर में कंज्यूमर होंगे। नाउ पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। अब एक सभी एक एक कंटेनर को एक एक ग्रुप के लिए टेबल पे रख देना है, ओके। नाउ आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं, आस्क कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। तो सभी जो कंटेनर्स हैं उनके फर्स्ट जो जनरेशन है, मतलब एक एक जो स्टूडेंट हैं उनको अपने अपने ग्रुप के कंटेनर से जो भी ईटेबल है उसको कंज्यूम करना है, ओके। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर। ऐसे ही अब अगली बार जो सेकेंड जनरेशन में जो सभी में 2-2 हैं वो बच्चे जाएंगे और उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। नाउ आस्क द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। अब बच्चे चेक करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको खाने के बाद कितना बचा है, फिर सेकेंड जनरेशन वालों ने जो कंज्यूम किया तो दोनों में कितना डिफरेंस आया। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट, अगर कुछ बचा है सेकेंड कंज्यूमर के बाद, मतलब सेकेंड जनरेशन के कंज्यूमर के बाद कुछ बचा है, तो इफ़ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स आस्क द थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, ओके। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स आर नॉट। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी वन ऑफ द कंटेनर। सो आपको क्या देखना है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर से ये सभी आपके पास कुछ मान लीजिए टेबल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का जो स्टूडेंट आया वो इनमें से कुछ टेबल्स को खा गया होगा, फिर सेकेंड जनरेशन के 2 आएंगे, ये भी इसमें से खाएंगे, ठीक है, इसमें जो बचा हुआ है। अब अगर कुछ बचा है तो थर्ड जनरेशन वाले आएंगे जो 4 हैं, थर्ड जनरेशन के 4 हैं, ये आएंगे और इसमें से खाना शुरू करेंगे। अब थर्ड जनरेशन को खाने के बाद हमको ऑब्जर्व करना है कि कंटेनर में कुछ बचा है या नहीं। तो हर स्टेप पे हमें ऑब्जर्व करना था, पहले के खाने के बाद कितना बचा, फिर सेकेंड जनरेशन के खाने के बाद कितना बचा, फिर सेकेंड जनरेशन के खाने के बाद थर्ड जनरेशन के लिए बचा कि नहीं, अगर बचा तो क्या थर्ड जनरेशन के सभी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको खाने के लिए मिला। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करना है। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो करती है। बिगिनिंग में पॉपुलेशन बहुत कम रहती है मिनिमम अमाउंट में, जैसे फिर सेकेंड जनरेशन में ये इंक्रीज़ करती है फास्ट रेट से, मतलब कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये और फास्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स जब बढ़ते हैं तो हमें मोर अमाउंट ऑफ जो रिसोर्सेज है वो हम यूज़ करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे ये जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है इस पर तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट जो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं इस पर इसका बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती रही, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, तो बहुत ही जल्द हमारे जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं ये ख़त्म होने वाले हैं। वैसे भी हम लोग ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो नेचुरल गैस है, जो हमारा फॉरेस्ट है, जो हमारा पेट्रोलियम है, ये मैक्सिमम 30 to 40 ईयर्स और रहेगा। इसके बाद ये सभी जो होंगे ये ख़त्म हो जाएंगे।
तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource। so इस जो एबव एक्टिविटी है उसमें जो कंटेनर में जो ईटेबल है उसी को हम लोग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की जगह पे कंपेयर कर रहे हैं। ओके, like coal, petroleum or natural gas. Each group may have different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some group were concerned about the coming generations and left something for them. तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर जब आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो फर्स्ट जनरेशन वाला बच्चा है उसी ने सारा कंज्यूम कर लिया होगा एडिबल्स, और उसने अपने सेकेंड और थर्ड जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ा। बट किसी ग्रुप में जो बच्चा है फर्स्ट जनरेशन का वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ छोड़ देता है, और किसी और ग्रुप में अगर हम देखें तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ छोड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है। अगर वो ग्रीडी है तो वो कुछ नहीं छोड़ता, अगर वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए ध्यान रखता है तो वो कुछ ना कुछ उसमें छोड़ता है अपने नेक्स्ट जनरेशन वाले स्टूडेंट के लिए। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं, मतलब हम लोग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर नोन एज फॉसिल्स। सो ये जो बनते हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं जिनको फॉसिल्स बोलते हैं। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, तो इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। तो कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस डायग्राम में एक ये जो पिक्चर है ये है कोल की पिक्चर। कोल सभी ने अपने घर में देखा ही होगा, घर पे नहीं तो कहीं ना कहीं आपने कोल ज़रूर देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसका यूज पहले फूड कुकिंग में करते थे और स्टीम इंजन में भी इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, रेलवे इंजन में इंजन को हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट देने के लिए। ठीक है, सो you can see here this one is the coal. You may have seen coal or heard about it. It is as hard as stone and is black in color। तो ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है और बहुत ही हार्ड होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। इसका यूज़ किया जाता था पहले। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो कोल का पहले यूज़ किया जाता था कुकिंग में एंड देन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता था। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो जनरली कोल एक ब्लैक कलर का बहुत ही हार्ड मटेरियल है जिसको जब हीट करते हैं, जब इसको बर्न करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। इससे हमें क्या मिलती है, हीट। तो अब इस हीट का यूज़ करके हम लोग अपने डिफरेंट पर्पज़ को फुलफ़िल करते हैं। वो पर्पज़ हो सकता है कि कुकिंग करने का हो, या फिर स्टीम इंजन के वर्किंग का हो, या फिर थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हीट की रिक्वायरमेंट हो। तो जहाँ भी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग कोल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट और कहाँ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोल का यूज़ करते हैं। तो अब ये कोल क्या है, कोल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है।
कहने का मतलब ये तो नेचर में पाया जाता है, बट ये लिमिटेड अमाउंट में है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज से कभी न कभी ये एक दिन ज़रूर इसका एंड हो जाएगा, मतलब एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। ये अनलिमिटेड नहीं है कि इसका यूज़ करते रहें और ये ऐसे ही मिलता रहे, नहीं। तो ये क्या है, ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। तो कैसे बना है कोल, उसके बारे में एक स्टोरी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टोरी है कोल के बारे में। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। साइंटिस्ट या डिफरेंट जो हमारे रिसर्चेज है उसके अकॉर्डिंग अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इतने ईयर्स पहले की अगर बात करें तो हमारे अर्थ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था। ठीक है, इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरिया ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग these forests got buried under the soil. Okay, as more soil deposited over them they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature dead plant got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. So this one is very important process that is known as carbonization. Since it was formed from the remains of the vegetation, coal is also called fossil fuel. Okay, so I hope you understand this process. According to this, about 300 millions ago जो अर्थ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था, जो डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लडिंग इन या फिर बोल सकते हैं आप इन कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो फॉरेस्ट है वो जो हमारा सॉइल के अंदर गॉट बरीड मतलब दब गया सॉइल के अंदर। ठीक है, और उसके ऊपर सॉइल कंटिन्यू डिपॉजिट होती चली गई। कुछ टाइम के बाद ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गया एंड इसके जो प्रेशर और टेम्परेचर रहा अंदर का वो बहुत हाई हो गया, जिसकी वजह से कुछ नेचुरल रिएक्शंस नेचुरल प्रोसेसेस हुए, जिससे यही जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं जो हमारे प्लांट रहे फॉरेस्ट के वही क्या कोल में कन्वर्टेड हो गए। ठीक है, बट ये रिएक्शन जो है ये वेरी स्लो थी, बहुत स्लो, और इसकी जो कंडीशंस है वो वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर है। ओके, सो डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। ठीक है, एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल में मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, तो जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो डेड वेजिटेशन है, वेजिटेशन मीन्स हमारे जो प्लांट है, सो डेड प्लांट या डेड वेजिटेशन जो कोल में कन्वर्ट होते हैं, जिस प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। उसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये है पिक्चर, ये पिक्चर कोल माइन का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसको सॉइल के अंदर से इधर ये डिफरेंट जो मशीन का यूज़ करके यहाँ से कोल को बाहर निकाल रहे हैं। जहाँ से इसको बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं कोल माइंस। ओके, तो ये है। अब आप देख सकते हैं व्हेन हीटेड इन एयर, अब ये कोल के बारे में, अगर कोल को एयर में हीट करें तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोल व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स and produces mainly carbon dioxide. Okay, coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. तो
कोल का जो यूज़ करके कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कोक एंड कोल तार आपने देखा होगा, जो जिससे रोड बनाए जाते हैं, ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही डेंस लिक्विड। देन कोल गैस भी ये गैस है जिसका यूज़ करते हैं। बट अगर हम कोल को एयर में बर्न करें तो हमें क्या मिलेगा? कोल मीन्स कार्बन, तो हम लोग अगर कार्बन ले लें प्लस एयर, तो आपको पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ बर्न नहीं करता। इट मीन्स एयर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब इस कोल को, ये कोल मीन्स कार्बन है, कार्बन को एयर मीन्स ऑक्सीजन में हीट करते हैं, तो ये बनाएगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो ये कोल है, कोल को जब आप बर्न कर रहे हैं ये O2, एयर मीन्स O2 यहाँ पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेसेसरली रिक्वायर्ड होता है बर्निंग के लिए। तो जब आप कोल को बर्न करेंगे, कोल बर्न इन एयर, देन इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है यहाँ पे। अब कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो ये सब यूजफुल प्रोडक्ट भी इससे निकाले जाते हैं। देखते हैं ये कोक, ये कोल तार एंड ये कोल गैस क्या क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है कोक। तो यहाँ पे कोक के बारे में देखते हैं। कोक क्या है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक substance. It is almost pure form of carbon. Coke is used in manufacture of steel. Coke is used in manufacture of steel and in the extraction of many metals. तो जो कोक होता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टफ, पोरस, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, मतलब इसमें 100% मान सकते हैं आप कार्बन है यहाँ पे। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? स्टील इंडस्ट्रीज़ में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में करते हैं, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कोक जो कि कहाँ से निकलता है? ये कोल से, ये कोल से मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है देखिए, कोल तार। तो आपने इसको देखा भी होगा। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड, ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ख़राब होती है, अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ, यह मिक्सचर होता है इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes। so इनका यूज़ करके सिंथेटिक डाई बनाते हैं। ड्रग्स, एक्सप्लोसिव जानते हैं आप, जो ब्लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। परफ्यूम्स आप जानते हैं इसके बारे में। प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। पेंट, इनसे पेंट बनाए जाते हैं। फोटोग्राफिक मटेरियल्स भी इनसे बनते हैं। देन रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from the coal tar। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेप्थलीन बॉल है, ये जो नेप्थलीन बॉल जो आपने देखा होगा, नेप्थलीन बॉल जनरली यूज किया जाता है क्लॉथेज में, ये भी कहाँ से मिलते हैं? ये कोल तार से मिलते हैं। ठीक है, तो ये नेप्थलीन बॉल जो है वो कोल तार से मिलती है, कोल तार से। तो कोलतार के बारे में अगर बात करें तो कोलतार देखिए एक ब्लैक थिक लिक्विड है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, जिससे बहुत सारी चीज़ें
निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, photographic materials, roofing materials, etc. And the most important line is the naphthalene balls used to repel moth and other insect are also obtained from coal tar. तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसको आप नोट कर सकते हैं, ये भी इसी से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. तो अब क्या करते हैं, इस टाइम एक बिटुमेन एक प्रोडक्ट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे, इस बिटुमेन का यूज़ करते हैं। पहले हम लोग कोल तार का यूज़ करते थे रोड बनाने में, अभी भी करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे कोल तार की जगह पे बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटेलिंग द रोड को बनाने के लिए इस बिटुमेन का यूज़ किया जाता है एट द प्लेस ऑफ कोल तार, ठीक है। तो ये है, ये बॉक्स में जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज coal gas. So students, we will discuss about coal gas in next session. Okay, revise these topics by yourself. Thank you for watching.